आफ्टरनून मैम। आ गया। मैम आवाज आ पा रही है? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। यस यस, अब आ रही है आवाज। सारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब चैनल पे हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको ब्रीफ किया भी होगा सानवाल जी ने। हाँ हाँ, मुझे यहाँ सुना। सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, क्योंकि आपके सेशन के बाद वैलिडिक्टरी सेशन स्टार्ट होगा। हाँ, तो आई ठीक है। वेलकम डॉक्टर एरम खान जी for the today's session, which is a special session teaching pedagogies for accessible and specially enabled people or students. All participants are aware about ma'am's skill, and ma'am, we thoroughly enjoy your sessions, which are a lot of learning based. So I hand over the mic to ma'am to start the session. Ma'am, on the behalf of Gautam Buddha University, I welcome you, and please, all yours. Thank you so much. The entire team of Gautam Buddha, we have talked about everybody, but not about the underprivileged or those who are differently able. And because any program will not be considered as complete if we don't talk about those who are also among us, certain sets of skills which are different from us. They are very able, but if we give some sort of assistance, even uh, we can see that in our society we have got a diversity of human beings, and right now in our nation we are very much development or course development or maybe teaching skill or online teaching strategies. But if we are also aware of all those assistive technology, I will talk about assistive technology today, and in detail there will be all those tools, all those techniques which are specially prepared by different institutions. Few of them are endorsed even by Government of India, and different institutions who actually make a liaison between them, and they create all those. I'll just share my presentation so that I can show you what exactly I have prepared for all this. So I hope that my presentation is visible to everybody. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So this presentation is based on assistive technology for inclusive education. Earlier, as you have seen, that the title was for but it's inclusive education. Why? Because inclusivity is something which is to be catered to, and we should not make a kind of you can say classification between human beings. We should treat everybody as equal. So this term inclusivity or inclusive education is the outcome of this thought process, which actually is willing to take everybody ahead, alongside, and at the same pace. So basically, this word inclusion in education refers to a model wherein students with special needs spend most or all of their time with non-special needs student. What exactly this means? That everybody, हर कोई क्लास में चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, सब बच्चे और जो बाकी के बच्चे हैं, वो बच्चे और जो किसी भी तरह की स्पेशल नीड्स रखता हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिर हियरिंग डिसेबिलिटी हो या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो, और कि वी हैव got 21 different type of disabilities which are covered under RPDW Act. So किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बट हम उसको एक ऐसे क्लास में पढ़ा सकें जो कि इंक्लूसिव हो, मतलब उसे ये ना, किसी भी बच्चे को ये महसूस ना हो कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कुछ अलग है उसमें. So that type of environment, when we cater to everybody, the model of that particular classroom or educational institution is considered to be inclusive. And we say that now, if everybody is catered to, then we are taking care of inclusion.
So this is the first concept, and the second concept is this one, which is universal design of learning. काफ़ी पहले मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रही हूँ और ईयर 2018 की शुरुआत में इन वन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ केरला in Ottapalam, that place was Ottapalam, where I was called for a key resource as a key resource person, और वहाँ पे मैंने एक सेशन इसके ऊपर लिया था. इट वाज अ बिग सेशन, 2-2.5 घंटे का सेशन था, जिसमें पहली बार जो है वो इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया था. इसके पहले एमएसयू बड़ौदा वगैरह में भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स प्रेजेंट किए थे, लेकिन सेशन लिया था इसके ऊपर, एंड देयर इट वाज एक्चुअली अक्लेम्ड, एंड दे सेड दैट it is an area where people should work. So from there this thought came कि हम लोग इसको, ये जो सेशन होता है जिसको हम ये कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे है या असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे है, उसको अपने किसी भी प्रोग्राम का अभिन्न अंग ज़रूर बनाएं, जिसकी वजह से हम किसी भी सोसाइटी के किसी भी अहम व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं. That person will be taken alongside in the process of development. Then here this term universal design of learning, how does this came into being? Basically, what exactly it means? It is a design of learning, or a way of thinking where anything. Suppose there is a book which is developed anywhere, or let us take an example of NCERT, because it has got the responsibility of development of textbooks. जब कोई भी पुस्तक या कोई भी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए डेवलप की जाती है, तो उस वक़्त ये ध्यान रखा जाता है कि हम लोग किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी ना करें जिसकी वजह से कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति हो, उसको उस किताब का लाभ ना मिले. यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक टेक्स्ट बुक है जो कि पेपर पे पन्नों पे छपी हुई है, तो उस किताब को कैसे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक बच्चा जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो कैसे लाभ उठा सकता है? हम लोग इन सारी चीज़ों को इस पूरे सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे. यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग इज़ बेसिकली, आपने देखा होगा मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. Basically, universal design of learning is a way of thinking about teaching and learning that helps to give all students an equal opportunity to succeed. And this is an approach which is very much flexible. और इसके इस मॉडल या इस डिज़ाइन के तहत जो भी कंटेंट डेवलप होता है, जो भी मटेरियल डेवलप होता है, उसको हर कोई यूज़ कर सकता है. और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी नया मटेरियल जो भी डेवलप किया जाए, even from the side of government of India or endorsed by any institution, उसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का ध्यान रखा जाए. यहाँ तक कि अगर हम एक टेलीफ़ोन बूथ को डेवलप कर रहे हैं, या हम कोई भी एटीएम मशीन डेवलप कर रहे हैं, या कोई भी इस तरह का कि पब्लिक जो सुविधाएँ होती हैं, पब्लिक डिस्पोज़ल पे जो चीज़ें होती हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, तो हम ऐसा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ कर पाए. उसे किसी और व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत ना हो. क्योंकि कई बार हम लोग अगर हर चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो प्राइवेसी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. हमारी प्राइवेसी जो है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है. So the point is that all the citizens of this country should having the equal rights to access every single entity which is created for anybody. यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग बेसिकली वो प्रावधान है जिसके तहत जो भी मटेरियल डेवलप किया जाए, उसको हर व्यक्ति यूज़ कर सके. हर व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति अगर है, वो भी उसे यूज़ कर पाए. अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर. असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे जब मैं आगे बात करूँगी, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से वो सुविधा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो टूल, वो टेक्नोलॉजी या वो सॉफ्टवेयर, वो किस प्रकार से कौन से स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेशल नीड्स के लिए बनाया गया है,
और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि यूडीएल के तहत बनी हैं, जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊँगी। तो पहले हम लोग एक बार असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिक है फॉर डिफरेंट स्पेशल नीड्स उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा यूडीएल टेक्नीक के बारे में भी बात करेंगे। उन चीज़ों की बात करेंगे, उन इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब साल 2 साल के दौरान डेवलप हुए हैं और वो पूरी की पूरी तरह से यूडीएल के ऊपर बेस्ड है, जो मैं आपको लाइव भी दिखाना चाहूँगी। So basically assistive technology is any device or any software or any equipment that helps us the people to work around the different challenges जो कि हमें कहीं भी आते हैं, पढ़ने के दौरान आते हैं, कम्युनिकेट करने के दौरान आते हैं या किसी भी प्रकार का जो काम है वो करने के दौरान हमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को बीट करने के लिए, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति एक केन जो आपने देखा होगा जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके पास एक केन होती है, एक छड़ी होती है जो फोल्डिंग होती है। That particular device is also considered as one of the techniques of assistive technology. मगर यहाँ पे मेरा जो फ़ोकस है, वो कुछ इस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स पे है, जो कि सॉफ्टवेयर हेल्ड हैं। देयर आर फ्यू ऑफ दोज़ थिंग्स जो मैं बात करूँगी, जो डिवाइसेज़ भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाई गई हैं। तो मगर ऐसी चीज़ें जो कि किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके नहीं बनती है, मैंने उनको ज़्यादा शामिल नहीं किया है अपने इस प्रेज़ेंटेशन में। सो बेसिकली ऑल दोज़ टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड बाय एनीबॉडी, anywhere for making all those problems solved जो कि हमें अपनी जो दैनिक जीवन है, जो हमारी डेली लाइफ़ है, उसमें हमारे सभी जो काम हैं, उन्हें करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्ज़ाम्पल दिया था, इफ समबडी हू इज़ हैविंग अ बैड हैंडराइटिंग, वो उस हैंडराइटिंग में की खराब होने की वजह से अब किसी किसी कारण से उस बच्चे की हैंडराइटिंग पे काम नहीं किया गया बचपन में और हैंडराइटिंग जो है वो गड़बड़ हो गई। सो दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्ट्रगल व्हेनेवर देयर इज़ point of writing something, and there will be taunts, there will be like a lot of discussions on his or her handwriting. So for him or her, if there is some device which is given to him to make a typed statement, उस केस में handwriting का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो for this child, this device, if a keyboard and a mouse and a laptop is given to this child, this will become an assistive technology for this child who is dealing with a bad handwriting. इसी प्रकार से जब कोई बच्चा है जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है या जिसको पैरों से चलने में दिक्कत है, उसके केस में अगर उसे एक व्हीलचेयर दे दी जाती है, तो वो भी उसके लिए असिस्टिव डिवाइस हो जाती है, जो उसके मूवमेंट में उसके लिए हेल्पफुल होती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, जो सेट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मुझे आज आपके साथ डिस्कशन करना है। के बारे में अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ beginning में I presented a paper in NCERT which was based on the technologies, the assistive technologies for special needs. तो मैंने कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करी हैं और उस पेपर को प्रेज़ेंट करने के बाद मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला था, जो कि रिलेटेड टू द असिस्टिव डिवाइसेज़ था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं आपको अभी एक लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन पे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 21 डिफरेंट टाइप ऑफ disabilities which are covered under the RPWD Act, जो अभी रिवाइज़ हुआ है कुछ सालों पहले। तो हम सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ को विदिन 1 आवर तो कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो मेजर टाइप की प्रॉब्लम्स दिखती हैं हमें क्लासेस में और कई बार हम टीचर्स को उनके साथ 2-4 होना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने वो 5 प्रकार की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर स्पेशल नीड्स हैं, उनको यहाँ पे कवर किया है। और इसमें से कुछ ऐसी नीड्स हैं जो कि ग्लोबल हैं, जैसे कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर वो जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनमें से कई डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही आ जाती हैं। या ऑर्थोपेडिक जो इम्पेयरमेंट है, तो 21 डिसेबिलिटीज़ में से बहुत सारी
आपको ऑर्थोपेडिक के ही अम्ब्रेला के अंदर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से है। अब पहला इसमें जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, दूसरा हियरिंग इम्पेयरमेंट, तीसरा स्पीच इम्पेयरमेंट, then orthopedically impaired, and then the fifth one is learning disabilities, जिनसे रिलेटेड असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैंने इस प्रकार से कैटेगराइज किया है। ये जो पहली कैटेगरी है वो है विजुअली इम्पेयर्ड की। व्हाट इज विजुअल इम्पेयरमेंट? आप सब लोगों को ही पता है, होना चाहिए होगा, कि जो लोग जिन्हें देखने की समस्या है, जिनकी साइट ब्लॉक्ड है, या जिन्हें किसी भी प्रकार से अपने अपने जो सेंस ऑर्गन्स जो हमारी आंखें हैं, या जो विजुअल सेंस ऑर्गन है उसे यूज करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये एक तो होता है जो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, और दूसरा होता है कि किसी व्यक्ति को कंप्लीट लॉस ऑफ विजन नहीं है, बल्कि उसको देखने में कुछ समस्या है, लो विजन है वो। और जिस जिस केस में हमारे पास हम लोग चश्मा लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम मायोपिक आई हैं। मायोपिक आई मतलब हमें दूर का देखने में दिक्कत होती है, या जिसे जो दूसरा इसका प्रकार है जिसमें हमें नजदीक का देखने में दिक्कत होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में भी अगर स्पेक्स चश्मे हैं जिनकी हम मदद लेते हैं। लेकिन इफ देयर इज जो आई साइट है वो इतनी वीक है कि चश्मा लगाने के बाद भी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा, और आपकी जो डेली लाइफ है, वो की एक्टिविटीज हैं, वो किसी भी तरह से बाधित हो रही हैं, किसी भी तरह से उसमें रुकावट आ रही है, इन दैट केस वी कैन से दैट देयर इज अ लॉ, यू कैन से दिस दैट पर्सन इज अ वेरी लो विजन पर्सन। और उसको अगर हम कुछ असिस्टेंस दे दें, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि स्क्राइब्स होते हैं एग्जाम देने के लिए, जो जब इस तरह के बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जो कि वो खुद से नहीं लिख पाएंगे, तो इस केस में उनके लिए कोई व्यक्ति बैठा होता है जो कि अ, उसके वो बोलता जाता है, जो परीक्षार्थी है वो बोलता जाता है, और जो उसका स्क्राइब है, that person actually starts writing, and he or she writes for this fellow. बट मैं इसको एक तरीके से ये मानती हूँ कि अगेन जो प्राइवेसी है वो तो एक बाधित हो ही रही है। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो ना लिखा जा रहा हो, या फिर कई बार ये भी होता है कि जिस स्पीड से आप बोल रहे हैं, या जिस स्पीड से आप लिखना चाहते हैं खुद, उस स्पीड से वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज which this visually impaired person has to actually you can say this person has to go ahead and उसका जो डेली लाइफ है उसमें बाधा होती है। तो ऐसा कोई टेक्निक तो हो सकता है जिसके तहत अगर हम उस व्यक्ति को वो टेक्नोलॉजी दे दें, तो शायद उसे स्क्राइब की जरूरत ना पड़े, उसे किसी और की असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग वो सारी चीजों की बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो कि लो विजन के लिए यूजफुल है, और कुछ ऐसी हैं जो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन अगर किसी को है तो उसके लिए भी यूजफुल है। अब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, मैंने सारी टेक्निक्स को यहाँ नहीं डाला है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरी सिंगल थिंग इन वन आवर। इंटरनलाइज करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मेरा पर्चा है, जो पेपर मैंने लिखा था और जिसको प्रेजेंट किया मैंने एनसीईआरटी में, या जो केरला में जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो 250 से ऊपर टेक्निक्स हैं जो कि वहाँ पे कवर हैं, तकरीबन सभी डिसेबिलिटीज को कवर करते हुए। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा-सा कम कर दिया है, उसको उसमें से जो मेन चीज़ें बस मैं उन्हीं को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि आप भी आराम से अगर चाहें तो अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो पहला है ये पेज जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंटर जो है वो है कंप्यूटर्स की स्क्रीन मैग्निफिकेशन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो उसी व्यक्ति के लिए यूज़फुल होगा जिसे कुछ दिखता हो, बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न ना हो। सो लो विज़न्ड पीपल जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन मैग्निफिकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस इज़ अ टेक्नीक वेयर
once you have got some sight, in that case what you can do, you can magnify your screen to a bigger extent, और वो आप उस सॉफ्टवेयर के तहत आपका जो भी स्क्रीन है जो आप यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। जैसे हैंड लेंस से जब हम देखते हैं तो बड़ा हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि ये तो हम जूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन जूम करने में और जो कंप्यूटर स्क्रीन मैग्निफिकेशन है उसको यूज करने में थोड़ा सा फर्क होता है। ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होता है, और ये अगर आपके स्क्रीन पे आपके डिवाइस में है तो आपको हर एक काम को करने में, इवन जब आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं अपने स्क्रीन पर से, तो ये जो स्क्रीन मैग्निफिकेशन है, इसे यूज़ कर सकते हैं, और जो लो विज़न्ड व्यक्ति हैं, उनको बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि जो उनका स्क्रीन है, वो उनकी आवश्यकता, उनकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैग्निफाई हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं, एरियाज़ हैं, जिनको उन्हें बहुत ज़्यादा मैग्निफाई करके देखने की ज़रूरत होती है। तो वो बिल्कुल जैसे हैंडलेंस काम करता है कि बाकी सारी चीज़ें स्मॉल फ़ॉन्ट में ही हैं, और सिर्फ एक वो वर्ड जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसे मैग्नीफाई करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दिस कंप्यूटर स्क्रीन मैग्निफिकेशन टूल्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। देन उसके बाद है नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विसेज़। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देती है, और ये पूरी तरह से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। अगर आप में से किसी ने कोई जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, वो बहुत सारी मूवीज़ अब इस तरीके से बन रही हैं, तकरीबन हॉलीवुड में ज़्यादातर मूवीज़ को डिस्क्रिप्टिव बेसिस के साथ बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या है, जब आप कोई भी मूवी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, तो वहाँ पे जो सबटाइटल्स है उसका होता है कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं। आप मूवी को इंग्लिश में देखना, मूवी बनी हुई मान लीजिए जर्मन में है और आप उसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भाषा चेंज कर सकते हैं। और आप हिंदी में देखना चाहते हैं, तो हिंदी में आप उसको उसका डब्ड वर्ज़न देख सकते हैं। और वहीं पे एक सेक्शन होता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन का। तो कभी आप लोगों को इस तरह का कोई मूवी आप लोग देखें, तो उस ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन को ऑन करके देखिएगा। बेसिकली वो करता क्या है, उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो सर्विस होती है, किसी भी वीडियो के लिए वो देख लीजिए, ये लेना। जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सर्विस होती है, वो सबटाइटल्स के साथ-साथ वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि वो जो सर्विस है, वो स्क्रीन पे कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जो बोल रहा है, व्यक्ति जो बोल रहा है, उसको तो सबटाइटल्स में आप सुन सकते हैं। सॉरी, सबटाइटल्स में लिखा जाता है, या फिर जो भी व्यक्ति है, वो उसको सुन भी रहा है। लेकिन जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन है, वो ये भी बताता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। अगर फॉर 1 मिनट जो सीन चल रहा है मूवी में, उसमें कोई भी चीज़ बोली नहीं जा रही है, सो उस केस में क्या हो रहा है? पूरे पूरे उस एक सीन में जहाँ पे कोई वॉइस नहीं है, वहाँ पे हो क्या रहा है, इसको भी वो जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सर्विस है, वो एक्सप्लेन करती है। तो उस केस में एक पूरी पिक्चर बन जाती है, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि बेसिकली अ, वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से पूरी पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो चल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। उनके सामने उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो मूवी को देख नहीं रहे हैं। पूरा पूरी पूरी मूवी का एक अच्छा-सा डिटेलिंग उनके सामने आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है, दैट इज़ ब्रेल स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है? बेसिकली ये क्या करता है कि आपके किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई एक स्टेटमेंट आया, या इवन स्क्रीन पर कोई दस्तावेज़ है जो कि पढ़ना है, और विजुअली इम्पेयर्ड जो बंदा है, जो व्यक्ति है, उसको तो पढ़ने, या तो उसे सुनना पड़ेगा, या फिर उसको आप ब्रेल में दे दीजिए, जो कि बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की स्पेसिफिक भाषा है। तभी वो उसको सुन पाएगा, या उसको महसूस कर पाएगा, उसको पढ़ पाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, किसी भी दस्तावेज़ को आप उसके साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ एक स्कैनर भी होता है। बेसिकली वो जो स्कैनर है, एक पतली-सी डिवाइस होती है, उस डिवाइस से आप पूरे पेज को स्कैन कर लीजिए। वो
साथ में जो दी हुई अगली डिवाइस है स्लेट टाइप से, वो उसके ऊपर उसका एक पूरा ब्रेल स्ट्रक्चरिंग करता चला जाता है, जिसको व्यक्ति महसूस कर सकता है। एक तो इसका ये भी वर्ज़न है और दूसरा वर्ज़न ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बोलो कुछ। नहीं मैम, नहीं मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो बेसिकली ये जो ब्रेल स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी दस्तावेज़ को स्कैन करके अगर ब्रेल में है तो उसको कि अगर मान लीजिए मेरे सामने एक ब्रेल डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। ब्रेल में आपको अगर मालूम हो तो डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं जिनसे जो है वो पूरी स्क्रिप्ट बनती है। उन उन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति जो ब्रेल नहीं जानता, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये जो ब्रेल स्कैनर है, ये दोनों काम करता है। ये नॉर्मल दस्तावेज़ों को ब्रेल में कन्वर्ट करके एक स्लेट होता है जिसके ऊपर उसको बनाया जा सकता है स्क्रिप्ट को और दूसरा चीज़ ये करता है कि ये जो ब्रेल में लिखा हुआ है, उस दस्तावेज़ को स्कैन करके नॉर्मल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है, दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए। अगली चीज़ है स्क्रीन रीडर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस के बारे में, कुछ ये उससे ही मिलता-जुलता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्विस है, जिसमें कि अगर आपने जो पूरा सिस्टम बनाया है वो उसको उसमें इंटीग्रेट किया है, यानी कि अगर आपने मूवी बनाई है, उसमें ऑडियो सर्विस को इंटीग्रेट किया है, तभी आप यूज़ फिर जो स्क्रीन रीडर्स हैं, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने अपने डिवाइस के साथ अपना लैपटॉप जो है उसके साथ उसमें डाल दिया। अगर डाल दिया तो आप फिर उस लैपटॉप को बहुत आराम से अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देन आल्सो यू कैन बिकॉज़ वन्स यू स्विच ऑन इट विल स्टार्ट स्पीकिंग अप। वो हर एक स्टेप को आपको जो भी स्क्रीन को आपने ऑन किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ। उसके बाद आपने जो भी बटन क्योंकि आपने एक चीज़ और अगर गौर की हो कभी, जो लैपटॉप्स है या फिर कीबोर्ड्स हैं, उसमें जो आपके कीज़ हैं, उन पे कुछ इस तरह के उभरे हुए निशान होते हैं, जिनको कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग बहुत ईज़िली इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं और वो उनके जो बाकी के सेंसेस हैं, जो टैक्टाइल सेंसेस हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो दे कैन एक्चुअली मेक आउट कि कौन-सा जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे है, क्योंकि उनको इंडिकेशंस दिए गए होते हैं किसी भी लैपटॉप में। तो एक नॉर्मल लैपटॉप है, उसमें भी आप अगर देखें तो जो एफ है, एफ अल्फ़ाबेट है, वहाँ पे रहता है एक छोटा-सा निशान-सा होता है उभरा हुआ, फिर जे पे होता है। इसके अलावा जब नंबर में अक्सर 5 नंबर जो है उसके ऊपर निशान होता है। ये अलग-अलग जो मेक है उसमें उसके हिसाब से अलग-अलग कई बार हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो यही फ़ॉलो करती हैं। तो क्या है कि उससे वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पे कौन-सी की है, तो टाइप करना उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम वो पूरा याद हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो बहुत स्पीड में टाइप करते हैं वो लोग वो उसको देखते भी नहीं हैं, जो नॉर्मल विज़न वाले लोग भी टाइप करते वक़्त कीबोर्ड को देखते नहीं हैं क्योंकि वो सब कुछ मेमोरी में आ चुका होता है। लेकिन जो स्क्रीन रीडर्स हैं, मान लीजिए जब आपने टाइप करना शुरू किया तो जो विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति है उसको तो ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पे उसने क्या टाइप किया है। तो वो सही कर रहा है या नहीं? अगर उसको कोई सुनाता जाए, बोल करके बताता जाए कि यहाँ पे ये वाली दिक्कत है, ये सही इसको इस तरह से लिखा गया है, तो वो उनको करेक्ट कर सकता है। तो जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो हर एक एक्टिविटी जो स्क्रीन पे हो रही होगी, उन सभी एक्टिविटीज़ को रीड करके बताते हैं। So these are the software which are amply useful, very useful for the low vision and complete loss of vision वाले लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट टेक्स्ट रीडिंग्स इनको ये इसमें भी स्कैनर लगा होता है। बहुत सारी किताबें हैं जिनका आपको ये देखा होगा कि बहुत कम बुक्स हैं, बहुत कम रीडिंग मटीरियल है, जो कि ब्रेल में भी अवेलेबल है। लेकिन हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को
किसी किसी भी तरह की मटेरियल को पढ़ने से डिप्रीव तो नहीं रख सकते। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई डिवाइस हो, जिसके ज़रिए वो पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे रिटन दस्तावेज़ को प्रॉपरली सुन ले। उस केस में क्या होगा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा व्यक्ति, उसके पास कोई भी किताब आई, जो किताब ब्रेल में नहीं है, तो वो डिव कई बार आपने अगर आजकल जो हाई एंड फ़ोन्स आ रहे हैं, उसमें भी ये जो सर्विसेज़ हैं, वो इंटीग्रेटेड होती हैं। नहीं तो एक स्पेशल डिवाइस भी आती है, एक स्कैनर होता है छोटा-सा, जिसके ज़रिए आप किसी भी बुक के ऊपर उसको एक बार पेज खोला और उसके ऊपर से आपने उसको गुज़ार दिया। नाउ एवरीथिंग गोज़ ऑन इन द सिस्टम ऑफ द स्कैनर और फिर उसके बाद आपने उसमें उसका ऑडियो ऑन किया, तो वो पूरा पेज जो है, उसको पढ़ के सुना देता है। तो दिस बिकम्स वेरी मच यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगली जो टेक्नीक है, वो है ब्रेल नोट टेकर्स की। लिखना अगेन बच्चों के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। अब अगर उनके लिए वो ब्रेल में लिखते हैं और ब्रेल में लिखने में उनको अ, अगर हमने देखा है कि कई बार अब हम लोग जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर हम किसी लेक्चर को ही सुनने के लिए गए, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा हम लोग लिखते हैं। हाथ से लिखना ब्रेल में उनके लिए फिर भी थोड़ा-सा दिक्कत तलब हो सकता है। ये जो ब्रेल नोट टेकर्स हैं बेसिकली दीज़ आर सच डिवाइसेज़, सच टेक्निक्स जो कि ब्रेल में नोट्स को आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको ब्रेल में करेंगे नोट्स को लेंगे और वो एक टेक्नोलॉजी के तहत होगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वो जो लिखावट है पेज पे वो ब्रेल में हो जाएगी। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपको सिर्फ़ करना ये है अगर आपको इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर नाम को आप गूगल पे टाइप करिए। जो स्पेसिफिक टेक्नीक है उसके पेज पे वो आपको लेके जाएगा और वो वहाँ पे पूरी आपको प्रोसेस बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर समय होता तो मैं आपको करके दिखाती लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम हर चीज़ को यहाँ पे करके देख पाएँ। तो आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर ऑन ओवर द इंटरनेट for you will get the results, many results for every technique. तो द नेक्स्ट थिंग जो मुझे मेंशन करनी है, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी 2-250 के करीब टेक्निक्स थी जिनको हम सबने मतलब मैंने जो पहले सेशंस लिए हैं उनमें डिस्कस किया या मेरे परिचय में है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही है। लेकिन एक पेज में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो टेक्निक्स थी वो कवर नहीं हो रही थी। सो आई वाज़ कंपेल्ड टू ऐड अनदर पेज। ये जो फर्स्ट है जिसको मुझे यहाँ पे ज़िक्र करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ डेज़ी। डेज़ी इज़ बेसिकली अ कंसोर्शियम जो कि ये एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डेज़ी क्या करता है? डेज़ी बेसिकली एक अ, ये आईआईटी दिल्ली में भी बहुत सारा काम डेज़ी पे हो रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी में भी बहुत सारा काम डेज़ी जो सिस्टम है उसके ऊपर हो रहा है। ये ऑडियो बुक्स डेवलप करते हैं। बेसिकली डिजिटली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑडियो बुक्स या ऑडियो डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं। मगर इन ऑडियो बुक्स में और जो नॉर्मल ऑडियो बुक्स हैं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स होती हैं जिनको जो बुक्स को पढ़ दिया जाता है और आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन जो डेज़ी बुक्स हैं और नॉर्मल ऑडियो बुक्स हैं, उसमें एक डिफ़रेंस ये होता है कि जो डेज़ी बुक्स हैं, उनको पढ़ने का पूरा जो तरीका है, उनको कैसे यूज़ करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप बात होती है। तो ये डेज़ी बुक्स जो हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति बिना किसी के असिस्टेंस के यूज़ कर पाता है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी की साइट पे जाएँगे, तो मैं अभी ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को दिखा भी दूँ। वहाँ पे बहुत सारी डेज़ी बुक्स डेज़ी जो ऑडियो बुक्स हैं, उनको बना कर के वहाँ पे डाल दिया गया है, सो दैट anybody can access those books without the assistance of any other person. उसके बाद जो नेक्स्ट है, वो है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। इस पर्टिकुलर टेक्नीक के तहत आप अपने डेस्कटॉप को बिना किसी की असिस्टेंस के एक्सेस कर पाते हैं। इसमें जो डेस्कटॉप है, उसके साथ एक छोटा-सा अलग डिवाइस भी दिया होता है, जिसके ज़रिए आप अपनी पूरी प्रोसेस, अपना पूरा जो सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से एक्सेस कर पाएँगे। वहाँ पे कुछ भी करना है काम आप कर पाएँगे, पिक्चर्स भी ड्रॉ कर पाते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट ट्रेनर प्लेट और वर्ड बिल्डिंग किट। अ
मैंने सोचा था कि फ़ोटोज़ वग़ैरह भी इसकी दिखा दूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिखाऊँ। ये जो हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। जब हम विज़ुअली इम्पेयर्ड बच्चों को के साथ डील करते हैं, तो उस केस में उन्हें अक्षर अक्षर का ज्ञान देना या उन्हें वर्ड्स न जो अक्षरों के साथ जोड़ कर के जब हम वर्ड्स बनाते हैं, वो समझा पाना या फिर नंबर्स के बारे में ज्ञान दे पाना, वो मुश्किल होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट ट्रेनर प्लेट है, इसमें क्या है मेटल की प्लेट्स होती हैं जो जिसमें अक्षर उभरे हुए से लिखे होते हैं। इन अक्षरों को बच्चे को छू करके पहचानना होता है औ और उसके बाद फिर उन अक्षरों को एक मेटल का ही स एक साँचा-सा होता है, एक फ्रेम होता है, जिसमें वो जोड़-जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं। So this becomes it's not a software, but it's basically a technique, a tool which helps a lot for learning the learning the words uh, by using different alphabets और जो vocabulary है उसको sharpen करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है for visually impaired children. इवन फॉर दोज़ चिल्ड्रन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम जब बिल्कुल बिगिनर्स को सिखाते हैं, तो उस समय अगर हम अपने बच्चों के सभी सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करवाएँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये जो टैक्टाइल अल्फ़ाबेट ट्रेनर प्लेट्स हैं, दीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर एवरी चाइल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको मुझे लगता है सबने इस्तेमाल किया होगा इन देयर चाइल्डहुड। अगर आपको याद हो अबेकस हम सबने यूज़ किया है। अबेकस बेसिकली एक फ्रेम होता है जिसके अंदर बहुत सारे तार से होते हैं या पाइप से लगे होते हैं और उन पाइप्स के अंदर जो है वो गोलियाँ होती हैं, जिनको आप एक साइड से दूसरे साइड सरका सकते हैं और उससे हम नंबर्स और जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बहुत सारी टेक्निक्स जो मैथमेटिक्स की हैं, उनको सीखते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप किसी नर्सरी स्कूल में जाएँ या किसी प्री नर्सरी जो सेक्शन होता है उसमें जाएँ, तो वहाँ अबेकस को हर एक बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। बट दिस अबेकस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एज़ वेल जो कि इस डिवाइस के ज़रिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक्स को सीख पाते हैं। हर एक बच्चा भी सीख पाएगा, इसके अलावा जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, वो भी सीख पाते हैं। ये जो ऑप्टाकॉन रीडिंग मशीन है, इसको आप डाल करके देख सकते हैं गूगल पे। दिस इज़ आल्सो अ रीडिंग मशीन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द रीडिंग ऑफ एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी फ़ॉर्म में है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर वो हार्ड कॉपी में हो। इसके ये स्कैनर बेस्ड होती है, स्कैनर बेस्ड है या फिर आपको अगर अंदाज़ा हो ओसीआर ऑप्टिकल जो जो ऑप्टिक्स है ना, ओसीआर टेक्नीक जो है वो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद मशीन में वो स्टोर हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है और उसको आप जो ये रीडिंग मशीन है, वो उसको ऑडियो फ़ॉर्म में तब्दील कर देती है, मशीन लैंग्वेज। वो किसी कोई व्यक्ति उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, बल्कि मशीन जो है, उस रिटन टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देती है और एक चीज़ उसमें और भी होती है। जैसे अगर आपको हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ी है, वो हम लोग जो भारतीय लोग हैं, वो हिंदुस्तानी वे में बोलते हैं। और अगर आप ब्रिटेन में जाते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम वगैरह में जो है वो वहाँ पे की जो इंग्लिश बोलने का एक्सेंट है, वो अलग होता है। अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलने का एक्सेंट अलग है। तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप इवन एक्सेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको इंडियन इंग्लिश में सुनना है या ब्रिटिश इंग्लिश में सुनना है या अमेरिकन इंग्लिश में सुनना है। तो आपको अगर किसी को एक्सेंट को की प्रैक्टिस करनी है या कोई चाहता है कि कोई वो उस स्पेशल एक्सेंट में सुने या अन्य देशों के जो व्यक्ति हैं वो अपने कम्फर्ट के हिसाब से जो ये रीडिंग मशीन्स हैं या जो भी वॉइस ऑडियो सॉफ्टवेयर है उनमें एक्सेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जॉब एक्सेस विद स्पीच ये बेसिकली मोबाइल में भी एक्सेस किया जा सकता है। जॉज़ बेसिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन कई बार इसके जो एडवांस्ड वर्ज़न्स हैं, उनको अगर आपको डालना है तो वो कुछ
अब कुछ वर्जन्स को पेड कर दिया गया है। बट अर्लियर जो पहले जब ये सारी जो टेक्निक्स नहीं थी, जिनसे हम स्कैनिंग करके और वॉइस ऑडियो में कन्वर्ट कर पाते थे, उस समय पे जॉज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल था और लोग उसको बहुत ईज़िली यूज़ कर रहे थे। अभी भी जॉज़ अवेलेबल है, मोबाइल पे उसको डाला जा सकता है और अब तो कई बार जो हाई एंड मोबाइल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड होते हैं। उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर पहले से ही डले होते हैं। सेटिंग्स में जाना होता है और उनको सिर्फ़ आप एक्सेस जो है उसका वो शुरू करना होता है। या फिर कुछ ऐप बेस्ड हैं, तो आपको बस प्ले स्टोर में जाना है और उन फ्री ऐप्स को फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होता है और उसके बाद यू कैन यूज़ दोज़ ऐप्स फॉर for making all those documents in audio forms. So this was about the assistive technology for visually impaired. अब इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका मैं ज़िक्र कर दूँ। ये आईआईटी चेन्नई ने बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट टेक्निक क्या एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम विद्या वृक्ष है, जिसको कि आईआईटी चेन्नई ने डेवलप किया था। ये ब्रेल सॉफ्टवेयर है बेसिकली। इसमें जो है ब्रेल और ब्रेल एंड इंटीग्रेटेड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, जो कि किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कंप्यूटर्स और साथ ही साथ ब्रेल में लिखी हुई किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने में, लिखने में असिस्ट करता है। और इसके ज़रिए जो कीबोर्ड्स वगैरह बनाए गए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, उनमें सारी इंडियन लैंग्वेजेज़ को भी इंटीग्रेट कर दिया गया। क्योंकि आप देखिए अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड देखें तो या फिर अ, आपके डेस्कटॉप के जो नॉर्मल कीबोर्ड्स आते हैं, उसमें इंग्लिश भाषा ही रहती है। फिर अगर आपको किसी और भाषा में टाइप करना है, हिंदी में आपको टाइप करना है, तो उस केस में आप वर्चुअल जो कीबोर्ड है, वो आपको स्क्रीन पे लाना पड़ता है या अगर आप यूनिकोड में टाइप कर रहे हैं, तो आपको या आप बाय द वे आपको हिंदी की टाइपिंग आती है, तो उस केस में तो आप हिंदी टाइप कर लेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यूनिकोड में टाइप करना है, क्योंकि यूनिकोड में जो टाइप कर किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको लिखना होता है, जैसे अगर आपको लैंग्वेज लिखना है, तो आपको लैंग्वेज को LANGUAG लैंग्वेज ही लिखना होगा, वो वहाँ पे हिंदी देवनागरी में टाइप होकर के आता है। तो अब उस केस में क्या है कि अगर आपके पास एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल कीबोर्ड है, जिसके ज़रिए आप टाइप कर पाएँ, तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। या किसी भी भाषा कन्नड़ में टाइप करना है, तेलुगु में, तमिल में टाइप करना है, तो वो वर्चुअल जो कीबोर्ड से उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो विद्या वृक्ष प्रोजेक्ट था, इसने बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वर्चुअल सॉफ्टवेयर का इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेज़ वो भी किया। मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिससे कि किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में या स्क्रिप्ट में जो भारतीय भाषाएँ हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। If you have complete loss of vision, then also it helps you to write in different Indian languages. So this by IIT चेन्नई बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको कुछ एनजीओज़ की मदद से डेवलप किया गया था। तो बेसिकली इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसको भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि अलग-अलग से अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है। साथ कंप्लीट पैकेज मिलता है और प्लस इसमें इंडियन लैंग्वेजेज़ को भी टाइप करने की फैसिलिटी है या उनको रीड करने की फैसिलिटी है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड प्रोजेक्ट जिसने काफ़ी सारा काम किया फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पे, जो कि है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए यहाँ पे जो जो टेक्निक्स मैंने मेंशन की हैं, वो है असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस पहली, जो कि आपने देखा होगा ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, वो कान में एक मशीन लगा के रखते हैं, जो कि उनको अगर कम प्योरली पूरा जो लॉस ऑफ हियरिंग है, तब तो नहीं वो यूज़फुल होती, लेकिन अगर जिसे कहते हैं कि थोड़ा-बहुत सुनाई देता है, लेकिन बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, उस केस में दीज़ डिवाइसेज़ आर हेल्पफुल। अगला है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, इसमें अगर पूरी तरह से हियरिंग लॉस है, हियरिंग एबिलिटी खत्म हो चुकी है, इन दैट केस आल्सो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ बेसिकली समथिंग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। वो उन चीज़ों को सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं। और वो जो सिग्नल्स हैं वो
जो हियरिंग एक डिवाइस है जो लगाई गई होती है कान में, उसको उसके ज़रिए वो सिग्नल्स उस व्यक्ति तक जाते हैं और वो उसको समझ पाता है कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। ऐसी ऑल्टरिंग डिवाइसेज़ हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। उन चीज़ों को जो ध्वनि है, जो ये साउंड है, उसको ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। पर्सनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें क्या है कि अगर कोई भी बात ये बेसिकली करता ये है कि अगर आवाज़ बहुत धीमी है या बहुत तेज़ है या आपके आपके अनुसार ये किसी भी आवाज़ को जो बात की जा रही है, उसको आप अपने अनुसार जो आपकी कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी है, उसमें आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं। ये इस तरह की जैसे कि फ़ैन है तो उसका उसमें रेगुलेटर चल के ज़रिए आप उसकी स्पीड बढ़ाते-घटाते हैं, वैसे ही जो पर्सनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसके ज़रिए आप स्पीड को घटा-बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, जो आपकी कंफर्टेबल ऑडिटरी लिमिट है। उसके बाद इंफ्रारेड सिस्टम्स हैं, ये इंफ्रारेड सिस्टम्स जो हैं, ये अगेन जो भी आपको अगर अंदाज़ा हो कि जो हमारा माइक्रोवेव जिन पे हम लोग खाना गरम करते हैं या खाना बनाते हैं या फिर जो अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम लोग बेसिकली अ, एब्डोमेन का या किसी भी बॉडी पार्ट को स्कैन करने के लिए अल्ट्रासाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी अ, तकरीबन बहुत सारे वेव्स के ऊपर निर्भर होता है। वो भी क्या है कि जो अलग-अलग तरह की ध्वनि तरंगों को अंदर भेजता है और डेप्थ के अनुसार वहाँ पे वो पिक्चर पूरी मिलती है। तो इंफ्रारेड सिस्टम्स जो हैं, वो भी क्या है कि ध्वनि तरंगे जो हैं, जो हमारी साउंड वेव्स हैं, उनको इंफ्रारेड सिस्टम्स के अनुसार आँकती हैं और आँकने के बाद उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं और जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, वो सिग्नल्स को समझ करके और पूरी बात का मतलब समझ पाते हैं। इंडक्शन लूप सिस्टम्स जो होते हैं, उसको कान में पहना जाता है और ये जो अ, सारे सिग्नल्स हैं, उनको पढ़ने में, उनको समझने में ये लूप सिस्टम्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट टेलीफ़ोन्स हैं, जो कि जो टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशंस हैं, उनको कि वो व्यक्ति सुन तो पा नहीं रहा है, तो उनको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि वो जो हाय वर्ड्स को सुन रहे होंगे तो शायद कई बार वो कुछ और लिख के आने लग जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट इट इज़ गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन। तो क्लोज़ कैप्शनिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होती है जब ट्रांसक्रिप्शन पहले से कर दिया जाए। लेकिन जो मशीन ड्रिवन ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी काफ़ी हद तक यूज़फुल होता है। अंदाज़ा लग जाता है कि क्या कहा जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्पीच इम्पेयर्ड के लिए है। ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की हैं। पहला जो फर्स्ट या यहाँ से ऑगुमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये इसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो है, जो बात कहना चाह रहा है वो उस बात को इशारों से एक्सप्लेन करते हैं कई बार, साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हर किसी के लिए समझ पाना मुश्किल होता है, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी बातों को ये जो ऑगुमेंटेटिव टेक्निक्स हैं, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है, इसके ज़रिए वो एक्स समझने योग्य जो भाषा है उसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय राइटिंग दोज़ थिंग्स यूजिंग दिस टूल, तो बहुत ईज़िली हो जाता है। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है अ, जैसे आपको एक पूरा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स की बात है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको किसी को कोई बोल के नहीं बता पा रहा है, तो वहाँ पे क्या अगर आपने कई सारी पिक्चर्स दिखा दी, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये पिक्चर्स का एक पूरा लाइब्रेरी होती है जो कि एक्सेस उसका उस व्यक्ति के पास होता है। जी, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? तो इसको यूज़ करके जो व्यक्ति जो ऑडिटरी जिसको भी बोलने में दिक्कत है, स्पीच प्रॉब्लम है, स्पीच इम्पेयर्ड है, उसको इससे बहुत असिस्टेंस मिल जाती है। देन इसके बाद देयर इज़ हैंड हेल्ड पोर्टेबल और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक स्पीच डिवाइसेज़ जिनके ज़रिए अगेन जो स्पीच इम्पेयर्ड लोग हैं, वो अपनी बात को लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं एंड देयर इज़ दिस फर्स्ट वर्ड्स, ये जो बैबल जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि क्लियरली अपनी बात नहीं कह पाते हैं।
ये जो फर्स्ट वर्ड्स करके एक सॉफ्टवेयर है, ये उन्हें असिस्ट करता है अपनी बातों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस उनकी उनकी जो बैबलिंग है, वो ये समझ करके और उसको प्रॉपर वर्ड्स में मेंशन कर देता है, तो वो जो कह रहे हैं वो आप आमतौर से सिर्फ़ उन्हें सुन के नहीं समझ पाएँगे। लेकिन चूँकि ये डिवाइस जो है इंटरप्रेट कर रही है उनके कहे हुए वर्ड्स को, तो वो फिर आपके लिए यूज़फुल हो जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं और वो आप समझ सकते हैं। जो अन्य व्यक्ति हैं वो उसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, मैं थोड़ा-सा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि शायद टाइम कम है अब। सो ऑर्थोपेडिकली जो इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अ, अगर बात करने जाएँ तो इनके ऊपर सिर्फ़ इन ऑर्थोपेडिक पर ही बात करने में घंटों लग जाएँगे, लेकिन मैंने सिर्फ़ कुछ ही चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी इसके ज़रिए क्योंकि चलना मोबिलिटी इनके लिए प्रॉब्लम होती है, जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक ऐसी भी हो सकती है कि थोड़ी-सी दिक्कत है और या फिर ऐसी दिक्कत है कि बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकता है। जैसे जो जो लोग जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो बिल्कुल व्हीलचेयर पर होते हैं या फिर ऐसे लोग जिनको सेरेब्रल पल्सी है, जो चल नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से या मूवमेंट जिनका मुश्किल है। तो ये जो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी है, ये डिवाइसेज़ व्हीलचेयर में लगी होती हैं, जिससे वो अपने मूवमेंट को बहुत ईज़िली कंट्रोल कर पाते हैं। अडैप्टेड रिक्रिएशन इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट उनको आज़ादी देता है, ऐसे व्यक्तियों को आज़ादी देता है कि वो इवन जो एक्टिविटीज़ जो डांसिंग एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि अम्यूज़मेंट के लिए हैं, उनमें भी ये participate कर पाएँ। So and if you go to any such showroom जहाँ पे इस तरह की सर्विसेज़ अवेलेबल हों, तो आपको दिखेगा कि ये जो डिवाइसेज़ हैं, सिर्फ़ छोटा-सा एक चेंज करने से आप ऐसे व्यक्तियों की लाइफ़ को बहुत बेहतर बना देते हैं, क्योंकि उनकी जो कुर्सी है, जो पहिया कुर्सी या जो व्हीलचेयर है, उसमें ही आपने वो थोड़े-से चेंजेज़ किए एंड by the use of that small software or small device, they can now do many things which even they were not thinking of कभी कर सकते हैं। तो इसके अलावा डेली लिविंग इक्विपमेंट्स हैं, मैंने शुरू में बात की थी, जो केन्स होती हैं उनकी एंड इवन वी गॉट अ ट्रेनिंग इन आवर यूनिवर्सिटी जिसमें कि हम लोगों को ऐसी जो केन्स थी हम लोगों की आँख पे पट्टी बाँध दी गई थी बिकॉज़ इन आवर यूनिवर्सिटी देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स। हर एक कोर्स में आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं। दे आर हैविंग रिज़र्वेशंस तो हर साल जो है हर कोर्स में ऐसे बच्चे होते हैं। तो व्हाइल आवर फैकल्टी ओरिएंटेशन वी गॉट ट्रेनिंग उसमें कि अन्य संस्थाओं के लोग भी आए थे, एनजीओज़ के लोग आए थे। उसमें उन लोगों ने एक केन हम लोगों को दिखाई, जिसको अब आँख पे पट्टी बाँध दी गई और वो केन हाथ में पकड़ा दी गई। जब आप उस केन को लेकर के चलते हैं, तो एवरी सिंगल ऑब्स्टैकल बीच में कंकड़ भी अगर आ रहा है, तो उसमें एक वाइब्रेशन आता है, जो जिस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, उसको वो वाइब्रेशन पता चल जाएगा और वो आराम से उस ऑब्स्टैकल से बच के आगे निकल जाएगा। कोई ऐसा अगर ऑब्स्टैकल है जो बहुत बड़ा है, तो उस केस में और वो व्यक्ति के ने उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया, तो उस केस में वो बीप भी होने लगता है, बीप होगा और वो सुनाई दे जाएगा। So these sophisticated canes are very useful. वो व्यक्ति बिना किसी की असिस्टेंस के सिर्फ़ उस केन की मदद से कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पानी है, रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्टैकल है, कीचड़ है, किसी भी तरह की जो भी बाधा होती है, वो जो केन होती है वो वाइब्रेट करके या वॉइस सिग्नल्स दे करके जो भी व्यक्ति जिसे जो यूज़ कर रहा है उसको अंदाज़ा दे देती है कि आपको यहाँ से ऐसे बच के निकलना है, आपको ऐसे चलना है। तो दीज़ आर सो गुड एंड सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज़ जिसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है, तो इन्हें यूज़ करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को ये प्रोवाइड करवाएँ। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करें तो और अच्छा है, अदरवाइज़ एट लीस्ट हम बच्चों को इन्फॉर्म तो कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है and get access to those. Access to classroom or workplace, workspaces. This is something जो कि institutions के लिए बहुत important है. Even in our university, it is now the compulsion कि हम हर एक क्लास में और हर एक रास्ते में
इस तरह के जो कि अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति है विजुअली वो भी उसको छू करके उसको टच करके पता चल जाए उसे कि अब उसे किस डायरेक्शन में मुड़ना है, कहाँ जाना है। और रैंप्स तो अब हर जगह होते ही हैं, नहीं है अगर तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि बनवा दें। अदरवाइज़ जो टेम्परेरी रैंप्स होते हैं, जो लकड़ी से बने हुए होते हैं, उनको फिट किया जा सकता है जब तक अगर आप कंक्रीट का नहीं बनवा पा रहे हो। या फिर मेटल के भी होते हैं, तो उससे व्हीलचेयर जाना, लोगों का चलना आसान हो जाता है। और ये जो एक्सेस टू क्लासरूम है, दिस इज़ तो समथिंग जो एसेंशियल है, होना ही चाहिए। इसमें उभरे हुए एरोज़ होते हैं। हेलो। अ, यस, यस। अच्छा, रेडी हम बस 1 मिनट के लिए हम बस मैं डॉक्टर एरम खान मैम का धन्यवाद करता हूँ। मैम आपने एक अपना कीमती समय निकाला और बहुत ही स्किल बेस्ड और बहुत ही यूजफुल आपने ये सेशंस रखे, जिससे सारे ही पार्टिसिपेंट, सारे ही लोग बड़े अभिभूत हुए और बहुत लर्निंग रही, बहुत सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।